Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome to Steven Sir Makes It Easy. Besides the normal introduction, जिसके अंदर बताया गया था कि मैं अकाउंट्स या फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, टुडे पढ़ाना कम है, एक तरीके से मार्गदर्शन करना है, विच इज़ नॉर्मली वन ऑफ द मेन जॉब्स फॉर एनी टीचर, एनी प्रोफेसर, एनी गुरु, इफ वी मे बी कॉल्ड सो. ओके, many a times almost every student will go through a phase, okay, कैसा रास्ते पे आ जाएंगे जहाँ पे उनको एक डिसीजन लेना है, okay, कि क्या करूँ मैं आगे जाके. हाँ, सो आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो, आपके 12वीं को कंप्लीट करने के बाद में और रिजल्ट्स निकलने के बाद में या उसके पहले आपने डेफिनेटली ये सोचा होगा कि मैं कौन सा कोर्स मेरे अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे मुझे करना है आने वाले 3 साल के लिए. ओके, तो उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालने की मैं आज कोशिश करूँगा. Okay, so one by one there are this is a lecture series where I am going to not teach you but explain to you कि अगर आप ये वाला कोर्स लेते हो तो आप आपके फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में एंड थर्ड ईयर में, एनी कॉलेज, दिस इज़ मोर सो फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ओके, बट अगर आप भारत के दूसरे कोई भी यूनिवर्सिटी में हो तो लगभग ऑलमोस्ट द सेम पैटर्न इज़ फॉलोड एंड ऑलमोस्ट द सेम सब्जेक्ट्स आर थॉट. हाँ, नॉट दैट एवरी चैप्टर इज़ द सेम, उसमें 19-20 ज़रूर होगा. मेरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी हद तक मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है. ओके, आज का जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, शॉर्ट फॉर्म में उसको BMS कहा जाता है. मैंने कहाँ पे तो पढ़ा था, बैचलर ऑफ मेडिकल साइंसेस. हाँ, बट दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ कोर्स. राइट नाउ द डिस्कशन इज़ बेस्ड कम्प्लीटली अपॉन बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़. सो इसको सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स कहा जाता है. दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जो इसके फीस है वो बाकी कोर्सेज की तुलना में थोड़े ज़्यादा रहता है. ओके, थोड़ा और महंगा रहता है. ओके, आगे जाकर वेरी इंपॉर्टेंटली ये कोर्स कितना इम्पॉर्टेंट है, थोड़े स्टैटिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं. ओके, 1-2 साल पहले ये एक रिपोर्ट था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र देर आर हाउ मैनी एप्लीकेशंस फॉर डिफरेंट कोर्सेज आफ्टर 12th standard. Okay, so this is what was found out, that the first course which many students opt is normal BCom. So if you can see above, that had around 1.1 lakh. But the one that we are discussing today, जो है BMS, that is the second most sought after course. Okay, BCom normal many people take,
बट उसके बाद में सेकेंड लेवल पे कौन है? इट्स दिस BMS. Okay, so this is one of the more popular courses, and the availability of seats, that is very important. The availability of seats in many of the colleges is gradually increasing. थोड़ा थोड़ा करके सीट की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कॉलेजेस में इंक्रीज होते आ रही है. तो अगर आप BMS लेने की कोशिश कर रहे हो, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड, इतना तो पक्का है कि वो इक्का दुक्का नहीं, काफ़ी लोग लेते हैं. ओके, एक एक करके BMS के कोर्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ जानने की कोशिश करेंगे. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू what are you going to learn in the 3 years that you are going to go through the course of BMS, Bachelor of Management Studies. There are many of you who would want to know, sir best colleges कौन से हैं इसके लिए, सर इसके लिए फीस कितने देने पड़ते हैं, सर कौन से कॉलेज में हमारा किस तरीके से एडमिशन हो सकता है. नाउ ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर साल बदलती रहती है. बेस्ट कॉलेजेस कौन सा है, ओके, इसके लिए एडमिशन का प्रोसेस क्या है. एलिजिबिलिटी काफ़ी सिंपल है, आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए. यू कैन बी फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, यू कैन बी फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, यू कैन डेफिनेटली बी फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड. ओके, एंड जनरली अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ अराउंड 40-45% के ऊपर लोग अप्लाई कर सकते हैं. मैनी कॉलेजेस खुद का एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट करते हैं, बट वो BMS के लिए कुछ हद तक कम होता है. ओके, आपके परसेंटेज बेसिस पे मे बी इन द टॉप नॉच कॉलेजेस, especially in the city of Mumbai, okay, they may conduct an examination so that they come to know what is the quality of the student. But otherwise आपके 12th के परसेंटेज पे डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल जाएगा. हाँ, it may not guarantee you an admission in the best college, but yes, definitely in some college. Okay, so right now this course of BMS, ये one of the questions that as a student you may ask yourself, is it for me? Now as a teacher I can say general things about this particular course. I cannot personalize it कि ये इसके लिए है या उसके लिए है. मैं जनरल आइडिया आपको डेफिनेटली दे सकता हूँ. आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या ये कोर्स मेरे लिए है, मुझ में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, व्हाट क्वालिटीज़ डू आई हैव टू हैव कि मैं ये कोर्स 3 साल में कंप्लीट कर लूँगा और मेरा पैसा और मेरा टाइम मैंने बर्बाद नहीं किया है. ओके, सो लाइक दी सब्जेक्ट मैटर बिहाइंड मी सेज, जल्दी से पढ़ लेता हूँ आपके लिए. ऑब्वियसली आपने भी ये पढ़ लिया होगा. बिजनेस मैनेजमेंट इंक्लूड्स स्टडिंग द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग. ये जो मुद्दे हैं ना, आपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 11th-12th स्टैंडर्ड में OCM या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के सब्जेक्ट में डेफिनेटली किया है. Why is it done in that? Because that subject is also called as organization of management, and this course is called as a management studies course. So in the studies and in the course and in the chapters that you are going to be learning in the next 3 years to come, the focus is going to be कि एक स्टूडेंट को एक मैनेजर हमको किस तरह प्रिपेयर करना है. ओके, नॉट एवरीबडी इज बोर्न अ मैनेजर. देयर आर सम, वो पैदा होते हैं विथ अ कमांड दैट दे कैन बी द टीम लीडर, दे कैन गाइड, ओके, दे कैन बी अ टीम कैप्टन, और वो डिसीजन ले सकते हैं. ओके, कहते हैं कि जब आपके पास में पावर आता है उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. ओके, तो कुछ लोग घबराते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, बोलेगा मैं खुद का काम तो कर लूंगा, बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे मत डालना. नाउ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ मैनेजर. अगर एक मैनेजर एक डिसीजन लेता है, एक सर्टन का एक्शन प्लान करता है, ही इज ऑल्सो रेडी टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस or for whatever happens after he has taken a particular decision. हाँ, so मतलब वो तरीके का एटीट्यूड आप में होना चाहिए, वो तरीके की मेंटालिटी आपके अंदर होनी चाहिए. एंड द BMS कोर्स काइंड ऑफ ट्रेन्स यू
in that particular field. It kind of grooms you. It tries to explain to you and it tries to teach you what is expected from a manager. What is a manager is required in almost all industries, whether वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, whether वो एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है. There are so many departments and every department has to be headed by a manager. उसके नॉर्मल टॉप पोजीशन पे एक मैनेजर बैठता है. ओके, वो मैनेजर्स उनके ऊपर के लोगों को रिपोर्ट करते हैं. सो आई रिपीट, द मैनेजर इज काइंड ऑफ अ टीम लीडर. ओके, वो एक दल का मुखिया है. ओके, और उसको उसके नीचे जो लोग हैं उनका मार्गदर्शन करना है. सो ऑब्वियसली मेंटली ही शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन बिकॉज ही उसके कंधों के ऊपर वो जिम्मेदारी डाली जाती है. सो टू मेक यू मेंटली स्ट्रॉन्ग, ओके, देर आर मैनी हु आर क्वाइट घबराते हैं. ओके, पोडियम पे स्टेज पे खड़े रहने से. यू कैंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ मैनेजर. सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ BMS you are made to prepare many presentations, not just theoretically prepare presentations on different topics, but you are made to go on the stage and explain your presentations. So stage fright करके कुछ होता है, वो निकालने की कोशिश करते हैं. Every quality that a manager is required to have, that is tried to be instilled in you. आपके अंदर वो इंजेक्ट करने का ये कोर्स ट्राई करता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन, you have definitely have an idea that it is a 3-year undergraduate course and it is going to give you an in-depth knowledge of different managerial and business related aspects. Okay, किसके लिए BMS का कोर्स बनाया गया है? Well, it's not for everyone. Okay, it is for somebody who has or who thinks that I am capable of leading a particular team. I am capable of starting a particular new venture. So if you can very quickly go through ये किस के लिए बनाया गया है. I am not saying what is written above is perfect, but आपको definitely एक आइडिया आ जाएगा क्या मैं इस कैटेगरी में आता हूँ कि नहीं, कि मुझे BMS कोर्स सूट होगा कि नहीं. Anyone interested in business or management field, students with very important good communication skills, teamwork spirit, leadership qualities, very important. Okay, you cannot be a manager and not be able to communicate. बातचीत अपने लोगों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ आप नहीं कर सको. ओके, सो टू से एक वेरी रिजर्व पर्सन जिससे दूसरों लोगों के साथ बात करना, मेल मिलाव करना पसंद नहीं है, मुश्किल हो जाएगा अगर एक ऐसे इंसान को एक मैनेजर के पोजीशन के ऊपर इलेक्ट किया जाएगा. सो व्हेन समबडी इज बीइंग इलेक्टेड एज अ मैनेजर ऑफ अ पर्टिकुलर टीम, जो भी उनका इंटरव्यू लेते हैं वो इतना तो ध्यान रखते ही है कि इज दिस पर्सन अ टीम मेंबर, कैन दिस पर्सन बी अ टीम लीडर. उनको अकेला काम नहीं करना है, नो, उनको एक साथ में दूसरों से काम करवा के लेना है, खुशी खुशी तरीके से. ओके, पीपल विशिंग टू परस्यू MBA. MBA इज अ वेरी सॉर्ट आफ्टर कोर्स जो लोग ग्रेजुएशन के बाद परस्यू करते हैं. सो BMS कोर्स वुड गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि ये MBA कोर्स जो 15th के बाद होता है उसमें क्या सिखाया जाता है. एंड लास्टली, कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. काफ़ी लोग, काफ़ी नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके मम्मी डैडी का, पेरेंट्स का एक सेटअप बिजनेस है और वो पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे उन बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे. नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट अगर गाड़ी चल रही है, गाड़ी को आगे भी चलता रखना वो भी तो एक काम होता है और उसको मॉडर्न तरीके से चलाना. हाँ, सो इवन सच पीपल, जिन लोगों के पास एक सेटअप बिजनेस है बट आगे वो गाड़ी चलनी चाहिए विथ अ मॉडर्न थिंकिंग, ओके, अ मॉडर्न एटीट्यूड, इवन फॉर सच पीपल business management studies is definitely going to be useful. Okay, now like I have told you that the course is trying to not just
teach you, train you mentally, but even to groom you externally. So many a times during your BMS 3 years you will notice कि आपको एक particular dress code दिया जाता है, at least जब आपको presentation करना है, because कहते हैं okay, first impression is the last impression. हाँ, so before you speak you are looked upon, तो उससे भी कुछ इंप्रेशन गिरता है. सो येस, सो देयर विल बी मेनी अ टाइम्स वे यू विल बी टोल्ड कि भाई टिप टॉप आपको ये पर्टिकुलर लेक्चर के लिए, ये प्रेजेंटेशन के लिए आना है. सो यू आर बीइंग ग्रूम्ड internally and you are being groomed externally. Okay, now all of this also depends upon the college in which you take admissions. I cannot tell you for you which college is good, which college is bad, but yes, अगर आप थोड़ा रिसर्च आपका भी कर लो, आपको भी पता चल जाएगा कि आपके शहर में टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, मीडियम लेवल पे क्या आते हैं, और सो लेवल पे चलता हुआ उस लेवल पे क्या आता है. मैं इनके बारे में कोई कमेंट नहीं करने वाला, बिकॉज दिस कीप्स ऑन चेंजिंग एंड इट इज माई थिंकिंग कि वो जो ईंटे पत्थर से बना हुआ कॉलेज है, दैट इज can only be as good as the faculty that teaches there. Okay, so it is not the structure, it is not the very nice looking glass facade buildings, no, but it is the people who teach there. तो कॉलेज ब्रिटिश के ज़माने का भी रह सकता है, बट अगर वहाँ की फैकल्टी अच्छी है, इफ द टीचर्स आर जेन्युइनली गुड, देन डेफिनेटली ये जो ग्रूमिंग है आपका internally and externally, okay, even in a college which does not externally look good but can be done. So I will not go on the chakachond of the college, but I will definitely want to know, is the teaching faculty they're good or not. Okay, I will come to that. How do you come to know कि टीचिंग फैकल्टी यहाँ पे या यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो कैसे है, जो वेरियस फेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एवरी कॉलेज का कोई ना कोई एक फेस्ट होता है, 2 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का. ओके, नाउ ड्यूरिंग दैट द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स, या उसका जो नेतृत्व है वो कोई ना कोई प्रोफेसर तो डेफिनेटली करेंगे, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द डिपार्टमेंटलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन टू स्टूडेंट्स. इफ एवर यू गेट दिस कोर्स एंड यू नो कि मेरे कॉलेज के अंदर ये फेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, आई वुड हाईली अप्रिशिएट इट कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो and you take up some responsibility. A manager has to be willing to do that. वो पीछे नहीं हट सकता है, he has to take one step ahead और उसको वो जिम्मेदारी लेनी है. Okay, very quickly, in future, as and when you clear this course and you intend to get into any sort of a career, what sort of careers can you get into? Well, managers are required in pretty much every field, whether वो hospitality का हो, manufacturing का हो, service का हो, so on and so forth. So above or besides me, HR executive, marketing managers, consultant, quality managers, business development executives, assistant managers, there are going to be many fields in which a requirement of a manager is going to be asked for. Right now, if you are someone who's watching this video, okay, and this particular explanation, my request is, please don't worry 3 साल के बाद क्या होगा, because right now आप सिर्फ इस कोर्स में जा रहे हो. 3 साल के बाद क्या होगा किसने देखा है? किसी ने नहीं. Okay, these courses and the world itself is changing rapidly. बहुत जल्दी ये दुनिया बदल रही है. तो जो पोजीशंस आज अवेलेबल है वो 3 साल के बाद होगे कि नहीं, मैं भी ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, आप भी नहीं कर सकते हो. वॉट यू कैन डू, इफ आई एम एंटरिंग द BMS कोर्स, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर लूँगा. 3 साल के बाद क्या होगा, what sort of a pay scale will I get, what sort of a company will I get into, what sort of a position will that I be, you will get a lot better knowledge about that during the 3 years training of BMS. तो right now let me not tell you कि 3 साल बाद क्या होगा, उसके बेसिस के ऊपर
अगर मैं वो कोर्स करूँ तो पैकेज इतना मिलता है, अगर मैं ये कोर्स करूँ पैकेज कम मिलता है। प्लीज लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। Right now, if you think that the BMS course is useful to you, then continue to pay attention. I will at least explain to you academically कि पढ़ना आपको, सीखना आपको क्या करना पड़ेगा। बाकी like I just said, if you browse the internet, if you do little bit of YouTube के अलावा, एक्चुअली YouTube के ऊपर भी थोड़ा रिसर्च कर लोगे ना, तो आपको डिफरेंट कॉलेजेस के पूरा रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। वो कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, वो कॉलेज में फैसिलिटीज कैसे है, ओके, वो कॉलेज का एज फार एज रिक्रूटमेंट है 15 स्टैंडर्ड के बाद में कौन से वहाँ पे कंपनीज आते हैं रिक्रूट करने के लिए, ओके। यू विल हैव पास्ड आउट स्टूडेंट्स जिन्होंने कोर्स वहाँ से किया है, उन्होंने अपना, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर एक रिव्यू डाला जाता है ना, कॉलेज की सुविधाओं का, कॉलेज की टीचिंग फैकल्टी का, कॉलेज के वेरियस फेस्ट का, ओके, सारा चीज 360 डिग्री एंगल से रिव्यू डाला जाता है। यू कैन ऑलवेज रीड दीज रिव्यूज जो पास स्टूडेंट्स के रहते हैं, ओके। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं दैट एवरी रिव्यू इज गोइंग टू बी अ ट्रू रिव्यू। यस, अगर कोई कॉलेज के ऊपर गुस्सा भी रहेगा ना, तो पॉसिबल है कि वो अपना भनास वहाँ पे निकाल लेगा, बट गुड एंड बैड आपको दोनों पता चल जाएगा, एंड एटलीस्ट यू विल बी प्रिपेयर्ड कि ये कॉलेज के बारे में मुझे पहले से क्या सोच के रखना चाहिए। ओके, सो व्हाट यू सी बिसाइड्स मी इज 1 year back what were the different cutoffs in the better colleges in Mumbai, and many of them for BMS अगर आप ध्यान दो वो 90+ ही है। Okay, now I'm not saying all of you are going to be getting 90+. If you do, praise God for that. But अगर नहीं होगा, there are many other colleges, okay, which are also well known, but yes, they may not come in the best 10 or the best 15 or the best 20. You can definitely, if अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे BMS करना है, but unfortunately you cannot get into the better known colleges, no harm done. There will always be another college जो एक particular next category में आएगा जहाँ पे आप try जरूर कर सकते हो। Okay, moving on from this is me coming to the content of the 3 years. I will not get into all the 3 years क्योंकि ये वरना बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा, but what am I going to do is concentrate on the first year, because like I have said, 3 साल के बाद क्या होगा नहीं पता, इनफैक्ट 1 साल के बाद क्या होगा। द कोर्स ऑफ BMS इज एक्सट्रीमली डायनेमिक। उसका मतलब क्या है, वो सेम नहीं रखा जाता है 6-8 सालों के लिए। एवरी 2 years, एवरी 3 years देयर इज गोइंग टू बी एन अपग्रेड, ओके। जो भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हो वो यूनिवर्सिटी ये कोर्स को जरूर रिफ्रेश करेगी, उसको कुछ ना कुछ प्लस और कुछ ना कुछ माइनस डेफिनेटली करने वाली है। इफ इन मुंबई यूनिवर्सिटी, ओके, आपको फर्स्ट ईयर में ऑफ BMS क्या एक्सपेक्ट करना है, सो बिहाइंड मी एंड अबाउ मी यू कैन अकॉर्डिंगली नोट दैट, ओके। आई डू माई बेस्ट के डिस्क्रिप्शन में इसका जो PDF है वो मैं शेयर कर लूँ। हाँ, बट अगेन देयर कैन बी चेंजेस हियर एंड देयर as and when you do get the admission. Your teacher also is going to tell you that this is going to be a course, this is going to be a content for semester 1 and semester 2. 3 years divided into 6 semesters. I am giving more details about sem 1 and sem 2. Second, third year का मैं थोड़ा ऊपर से बात कर लूँगा, because in all possibility उसमें changes as and when you go to the second and third year definitely होंगे। Okay, so आपको सेमेस्टर 1 के अंदर जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, एक कहते हैं इलेक्टिव कोर्सेज, दूसरे को एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, एंड यू कैन हैव स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, ओके। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। मुंबई यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? एटलीस्ट दिस सब्जेक्ट कैन बी एक्सपेक्टेड, मीनिंग accountancy. Now again, the basics of accounts are taught, because you may have a student who is coming from arts, you may have a student who is coming from science, जिन्होंने accounts के बारे में कुछ नहीं किया है. तो जो accounts जितनी ज़रूरत है for somebody who will take the position of a manager in future, उतना accounts पढ़ाया जाता है. पूरी स्टोरी नहीं पढ़ाई जाती जितनी ज़रूरत है. तो एटलीस्ट somebody जो एक नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आ रहा है,
ही कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। आपको लॉ की जानकारी दी जाती है, आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, आपको फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ लेट मी गो थ्रू द मोर इंट्रिकेट डिटेल्स जितनी जल्दी हो सके। सो आपको सेमेस्टर 1 के अंदर अकाउंट्स होगा। स्पेसिफिकली अगर आप पूछोगे कि सर व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट्स, सर आई एम फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मुझे तो अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता है, बट सर एडमिशन के पहले 1 महीना है मेरे पास में, तो मुझे कौन से चैप्टर्स के ऊपर ध्यान देना है। वेल, आपको बिसाइड्स मैंने लिस्ट बता दिया है कि आपको कितने चैप्टर्स होंगे, ओनली 4। तो इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, the least you can do is maybe request a friend, request a colleague, request a relative, request बड़ा भाई बड़ा बहन कि मुझको इतना तो पढ़ा दो कि जब मैं कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड करूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, मुझको आउट ऑफ प्लेस अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में ना लगे। सो इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, डिप्रिसिएशन का चैप्टर एज वेल एज फाइनल अकाउंट्स। एवरीबडी हु हैज डन कॉमर्स एंड जिन्होंने अकाउंट्स किया है उन लोगों के लिए ये पीस ऑफ केक है, बड़े आराम से हो जाएगा। यू आर थॉट बिजनेस लॉ, उसके अंदर अलग अलग जो कानून है, एक्ट्स है, लॉ है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। लाइक यू सी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज करके एक चैप्टर किया होगा, दैट यूज टू कम इन दिस पर्टिकुलर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। Consumer Protection Act, Company Law, Intellectual Property Rights, IPR, a very very important modern day law. Okay, so आपको accounts, आपको business law, आपको business statistics. Okay, तो if you are someone जिन्होंने maths and stats नहीं लिया था 11th and 12th के अंदर, तो my dear ये साल में, ये सेमेस्टर में आपको डेफिनेटली इतना तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाएगा such that you can accordingly a manager, one main thing that he has to do is to make a decision. He cannot, वो मतलब ना दिल से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उसको डिसीजन लेना चाहिए फैक्ट एंड फिगर्स पे, न्यूमेरिकल चीज़ों पे बेस्ड उसको डिसीजन लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली ही हैज़ टू नो नंबर क्रंचिंग, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड द स्टेटिस्टिकल एंगल बिहाइंड दैट। उतने के लिए आपको जो चाहिए वो स्टेटिस्टिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन, वन ऑफ द क्वालिटीज of a manager is good communication, so obviously that is also going to be taught to you, otherwise वो grooming का factor कैसे होगा। फाउंडेशन कोर्स है, उसके अंदर इंडियन सोसाइटी, concept of disparity 1, concept of disparity 2, the Indian constitution and significant aspects of political processes. So obviously, okay, so when it says FC foundation course, every angle 360 degree overview आपको दिया जाएगा। Then foundation of human skills, because you will be dealing with people, you will be handling people, so obviously it becomes very important that you understand how does a human being think and operate. तो वो एटलीस्ट थियोरिटिकली आपको पढ़ाया जाएगा। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द फैकल्टी इन द कॉलेज, जो ये चीज़ प्रैक्टिकली आपको कितने अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ओके, एंड लास्टली आपको इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट डेफिनेटली रहेगा, जस्ट लाइक यू हैड इट मे बी इन योर आर्ट्स and commerce background. This is your semester 1. इसके बाद में आपकी कहानी चली जाएगी सेमेस्टर 2 पे। सेमेस्टर 2 में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। Again, principles of marketing. I'll go a little bit faster. All of this is appearing on your screen. Chapters आप देख सकते हो। Industrial law, बिजनेस मैथमेटिक्स, पहले आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया गया था। बिजनेस कम्युनिकेशन 2, इट वाज आल्सो थॉट टू यू फर्स्ट एज कोर्स 1। फाउंडेशन पहला कोर्स 1 था, अब उसको 2 किया जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लास्टली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, पुटिंग ऑल ऑफ दिस बिहाइंड मी वंस अगेन एंड इट बीइंग अवेलेबल, ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू ट्राई टू ग्रूम यू, ओके, एंड वो एक फाउंडेशन आपको रखने वाला है। This will be bettered when you go to your second year and also when you enter your third year. If I talk about कि सर सेकेंड ईयर में मुझको क्या रहेगा, अगेन मे बी यहाँ वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपका चेंज करेगा, बट जनरली एटलीस्ट राइट नाउ मुंबई यूनिवर्सिटी में ये कॉलेजेस को कहा गया है, क्या कहा गया है कि आपको इलेक्टिव जो कोर्स है एनी वन ग्रुप, सो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये सेमेस्टर 3 है, any one group of courses from the following list of courses. Okay, now
देर आर, ये जो ग्रुप है इसके अंदर आपको क्या आता है, अगर आप थोड़े मेरे पीछे देखो, देर आर 3 कैटेगरीज. ओके, सो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज फाइनेंस, you have something called as marketing, and you have something called as human resource. Now please understand, this is what the university is suggesting the college, okay, but the colleges may not have the faculty and the facility to offer all the 3. तो कुछ colleges में ये कंपलसरी हो जाता है, आपको मार्केटिंग ही लेना है, या तो आपको ह्यूमन रिसोर्स ही लेना है, या तो आपको सिर्फ फाइनेंस लेना है. कहाँ कहाँ पे 3 ऑप्शंस रहते हैं, कहाँ कहाँ पे 2 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से आपको कोई ना कोई एक इलेक्ट, आपका स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा. अगेन दैट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज. ओके, कहाँ पे क्या क्या सुविधाएं एज फार एज द फैकल्टी एंड द फैसिलिटीज आर अवेलेबल. ओके, नाउ बेसिकली जो आप इलेक्ट करोगे इन semester 3, something on that same basis you will continue with semester 4. Okay, all the details are behind me, and like I've said, I'll do my best to put in this details in the form of PDF as a link in the description. This is your SY BMS, and आप last year में क्या expect कर सकते हो. Right above it says any 4 courses from the following list of courses. Okay, उसके बाद में लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट डेफिनेटली आप सेमेस्टर 5 में करते हो. कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस. नाउ इसके अलावा अबाउट इट सेज एनी 4. अभी ये 4 में आपको क्या सिलेक्ट करना है. अगेन कॉलेज टू कॉलेज, फैसिलिटी टू फैसिलिटी, फैकल्टी टू फैकल्टी, ये डिफर हो सकता है, बट जस्ट अ जनरल आइडिया. सो यू हैव फाइनेंस, सेम 5, सेम 6. There are 6 alternatives, you have got to select 4, but you can even go to marketing, again you have got 6 alternatives, select 4, or human resource, 6 alternatives, you can select 4. Depending upon college these can change, but this is the overall look of your semester 1, of your semester, sorry, of your year 1, of your year 2, and of your year 3. The BMS course, to summarize all of this, okay, is basically a good course. It is one of the more sought after courses. BCom के बाद में ज़्यादा डिमांड इस कोर्स की है. Fortunately, as far as the seat availability is concerned, every year the seats that are available in various institutions वो इंक्रीज हो रहे हैं. सो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स. व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज यू शुड बी नोइंग वेदर एम आई suited to this course or not. The course basically is going to change somebody who may be shy to somebody who can manage having the spotlight on him all throughout his working life. I hope अगर ये कोर्स आपको मिलता है, you land up in a particular college with a good faculty, with good facilities, so that whatever is promised to be explained and taught to you theoretically and practically, वो actually हो आपके साथ में. Okay, so there are going to be more video lectures where I will explain the other self-finance courses also. If this knowledge that you have gained is useful to you, then it would be my request कि डेफिनेटली ये लेक्चर का जो लिंक है दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना, ताकि उनको भी पता चले कि BMS कोर्स में आने वाले 3 सालों में एनी कॉलेज जो वो ज्वाइन करते हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज फार एज दैट पर्टिकुलर कोर्स इज कंसर्न. ऑल आई कैन से राइट नाउ इज ऑल द बेस्ट, एंड आई होप गुड फॉलोज यू ऑलवेज. टेक केयर. गुड डे.